Enolate formation. Today's our topic is the reactivity of enolate ion. But before that, we have to we have to know how to enolate form. Okay, so basic thing for the enolate formation is there is a presence of alpha hydrogen. Presence of alpha hydrogen is here. So that presence is most important for the enolate formation. Okay, and the enolate formation, it may be occur in the presence of base due to the abstraction of this acidic proton, and it also occur in the presence of acid by the attract this electron by lone pair of electron of the oxygen. Okay, and it also produce this enol, and due to the basic condition, this base abstract to this proton and it produce the enolate. Okay, so this is the basic theme. And also the enol formation is depend upon the substituent attached to this alpha carbon. Okay, if there is a one electron withdrawing group, make this proton to acidic. Okay, and second condition, if there is a two electron withdrawing group, so in case of the acetic acetoacetic ester. Okay, so in such a condition there are two electron withdrawing group. Okay, this one, this carbonyl group, and this is the second carbonyl group. And because of these two electron withdrawing group, this proton become to be more and more acidic. Then that acidicness of this proton is more as compared to this proton. This thing you have to keep in your mind. If the number of electron withdrawing group is increases, the stability of this carbanion is also increases due to the delocalization. And different type of electron withdrawing group is there. They're having the more electronegative atom, and different functional group is there, like nitro group, cyano group, carbonyl group. Okay, so in this type of group is present, so it produces the enol. Okay, and just there is this protonic relocalization in the keto and enol form. Okay, so this is the enol form, and second one, this is the enol form, and second one is here. This is to be the keto form that we already discussed into the previous lecture. But for our understanding, we have to know this all thing. So there is a proton relocalization. This proton is relocalized, and because of this relocalization of the proton, it gives a two structure is here. One is a keto structure and one is a enol structure. Okay, or enolate ion structure. So these two structure are equilibrium, in equilibrium. Okay, they are the equilibrium. They are not isomer. Okay, they are not isomer. They are equilibrium structure. Okay, so here there is a relocalization of this proton, also called as a prototopy, or this term is also known as to be tautomerism. This is all we learned in up to the previous lecture. But now in today's lecture we are going to learn about the reactivity of enolate ion. तो देखो क्या होता है रिएक्टिविटी में हमें देखना है कि इनोलेट आयन जो है इस मॉलिक्यूल में कहां पे बनता है, इसका डिलोकलाइजेशन और रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, फिर थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी उसकी, जिसे हम काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल भी कहते हैं, ये किस तरह से इंटरफेयर करता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो देखो इसमें क्या है. I'm audible? So let's see reactivity of enolate ion. So in enolate ion, we know that how it forms. So after forming, there is a negative charge generated on this carbon because the acidic proton
present on this alpha carbon, and due to the abstraction of this proton, develop the negative charges here, and simply it is called as to be carbanion. But this is a specially name it given to this type of carbanion is a enolate ion, because there is a carbonyl group present on the first, means carbonyl is a functional group, and at the alpha proton is default and gives a negative charge. So this is the enolate. Okay, so this negative charge is not localized at one position, and due to the delocalization of this negative charge, the reactivity of enolate ion is vary, because this negative charge is appear on two different atoms. One is carbon and second one is the oxygen. Okay, so carbon, if there is a present on the carbon, what happen if it is present on the oxygen? तो इसमें क्या है कि नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है अल्फा कार्बन पे, बट ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड के साथ में डीलोकलाइज हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेवलप द नेगेटिव चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन. तो हमें दो टाइप के यहाँ पे जो पोजीशन है कार्बन आयन की वो देखने को मिलती है. एक जो होती है इस कार्बन पे होती है, एंड सेकेंड वन ऑन दिस ऑक्सीजन. ओके, तो इस तरह से होती है. और इन केस ऑफ साइनो ग्रुप जो होता है, अगर साइनो ग्रुप वहां पे रहता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन अगर रहता है, तो एक नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे रहेगा और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज जो है वो रहेगा नाइट्रोजन पे, इन केस ऑफ साइनो ग्रुप. तो हम यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को कंसीडर करके यहाँ पे इसको देख रहे हैं. तो क्या होता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन. ओके, so because of that the oxygen have ability to hold the electron strongly as compared to the carbon, है ना. तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ज्यादा हमें दिखेगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो हमें ये दो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, उस साइड में जो है इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगी. मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे, ये निगेटिव ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज जो होता है ये ज्यादा रहेगा. ठीक है, ये एक बात है. अब इसमें क्या होता है, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, मतलब हम एग्जांपल अगर दूसरा कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन के वाया रिएक्ट होगा, वहां से यहाँ से ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया. तो इससे हमें एक यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके साथ में ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये ऑक्सीजन पे चला गया, है ना. मतलब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये क्या हो रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. सो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये जाएगा ऑक्सीजन पे. ठीक है, और ये दूसरा जो है अगर ये कार्बन से वाया रिएक्ट हुआ तो ये जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जाएगा इस कार्बन ग्रुप पे. बट एक्चुअली क्या होता है, भले ही हमें यहाँ पे ये निगेटिव आयन वाला कॉन्सेंट्रेशन भले ही ज्यादा दिखता हो, बट जब ये न्यूक्लियोफाइल करके जब एक्ट होता है, then it react through this carbon. ओके, क्या होगा, ये कार्बन के साथ में इट रिएक्ट थ्रू द कार्बन सेंटर, है ना. मतलब ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज होगा और यहाँ के बॉन्ड ये फिर किसी इलेक्ट्रोफाइल को दिए जाएंगे, और वहां पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये जाएगा कार्बन सेंटर पे. ठीक है, तो ये इस तरह से जो है इसमें देखो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ का जो है अपना नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये ड्यू टू द एब्स्ट्रैक्शन हुआ. देन दिस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज, सो दिस नेगेटिव चार्ज गोज ऑन टू बी ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड. ये एक कंडीशन रहती है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहेगा, और दूसरी एक कंडीशन हो सकती है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज इसी कार्बन पे रहेगा. ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. सो ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
दिस नेगेटिव चार्ज स्ट्रांगली होल्ड बाय द ऑक्सीजन। तो इस वजह से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी हमें ज्यादा दिख रही है ना। ये एक बात है। दूसरी एक बात इसमें क्या है कि ये जब किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट होगा, है ना, हमें तो इसकी रिएक्शन ही देखनी है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट हो गया, तो यहाँ पे दो चांसेस है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल है ऑक्सीजन पे जाएगा और दूसरा तो ये कार्बन पे जा सकता है। मीन्स व्हेन दिस इनोलेट आयन रिएक्ट वाया ऑक्सीजन, सो इट गिव्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा जो है, जहां यहाँ क्या होगा, ये जो अनायन है इट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल वाया कार्बन सेंटर, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एक प्रोडक्ट है और ये वाला जो है ये दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरली इट रिएक्ट वाया कार्बन सेंटर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो भी होता है ना, इट रिएक्ट वाया कार्बन सेंटर। अब कार्बन सेंटर से ही रिएक्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, ये एक चीज होगी जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक को क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे CO सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज CO सिंगल बॉन्ड, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड वो अगर बनता है रिएक्शन होके, तो ये तो मोर स्टेबल देन CO सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशन वो प्रीफर करेगा, ये दूसरी बात हुई। एंड देन थर्ड वन इज देयर थर्मोडायनामिक कंसेप्ट, ओके, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बिकम टू बी मोर स्टेबल, ये वाली एक कंडीशन होती है। ये हम आगे इसको और डिटेलली स्टडी करेंगे, बट बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ये नेगेटिव जो सेंटर है, इट रिएक्ट नेगेटिव चार्ज, और इट दिस इनोलेट इज रिएक्ट विद द डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल वाया कार्बन सेंटर रादर देन ऑक्सीजन सेंटर, ठीक है। हमें दोनों भी सेंटर पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, बट वाया कार्बन सेंटर ही हो रिएक्ट होगा किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। तो ये जो है इसकी हम रिएक्टिविटीज को बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट। तो देखो रिएक्टिविटी जो हमने देखी यहाँ पे वाया कार्बन सेंटर से रिएक्ट होता है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर एंड कीटो इनोल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तो अभी हमने देखा ही है, इसमें रेजोनेंस सॉरी इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है इसमें कार्बन ऑक्सीजन ये वाला, ठीक है, जो कीटो फॉर्म में प्रेजेंट है, और कीटो फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। ये तो चीजें हो गई, ये OH बॉन्ड होता है यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी जो स्टेबिलिटी जो होती है, ठीक है ना, ये जो कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्डेड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये हमने पहले देखा है। और यहाँ पे जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1.26 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से जो इसका जो स्ट्रक्चर जो है ये ज्यादा स्टेबिलिटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा कीटो फॉर्म का
एज कंपेयर टू बी इनॉल फॉर्म। तो ए वाली कंडीशन होती है, और कीटो फॉर्म जो है इस सॉल्यूशन में जो बनेगा तो वो नियर अबाउट 99% यहाँ पे हमें बनते हुए दिखेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ये जो इनॉल फॉर्म है, ठीक है, ऐसे वाले। तो ये बनेगा सिर्फ 1%, ये वाली चीज होते हैं। और इसका डिलोकलाइजेशन हमने देखा ही है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो आपको दिखाने हैं। ये स्लाइड को क्या हो गया, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हेलो।